पूछूंगा नहीं आप लोगों से। दिस स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन योर 10th क्लास मैथमेटिक्स। Obviously the questions are lengthy, but if you solve the question only once, then the whole thing will be absolutely clear. जैसे होता है ना किसी चैप्टर में भी आपको प्रैक्टिस फॉर 2 और मोर देन 2 टाइम्स तब कंफर्टेबिलिटी आती है। इसमें कंफर्टेबिलिटी नहीं चाहिए, वन टाइम यू सॉल्व इट देन यू विल बी कंफर्टेबल, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट मीन, राइट? मीन के फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ मीन, राइट? तो फॉर्मूले इसमें देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल डेटा में, मीन हाउ यू विल कैलकुलेट, summation x upon number of terms. This is what? Sum of numbers or terms. जो भी आपको दिया उनका सम करेंगे। n is what? Number of terms. In direct method, in discrete और continuous data, discrete और continuous में आपका वैरायटी ऐसा हो जाएगा बेटा x और f का। So what you will do? You will first calculate fx. तो जो भी fx का सम आएगा that will be summation fx, and जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा that will be the number of terms. fx को कैलकुलेट करोगे तो जो काम यहाँ summation x कर रहा है that will do summation fx, and this f summation f will give you number of terms. So इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लिख सकते हैं summation fx upon summation f. Direct method. This is also known as direct method. Now second method is shortcut और assume mean method. Shortcut और assume mean method का डिटेल तो बाद में डिस्कस करूंगा, but I am just writing the formula. फॉर्मूले में क्या करते हैं? We write it x bar equal to, चलो पहले मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको कोई भी डेटा है, आपके पास है x है suppose 10, 30, 50, 70, 90. The f is 2, 3, 5, 7, 9. Now you always calculate b. b is calculated by x minus a. And this a is what? इसको हम बोलते हैं assumed mean. अब assumed mean कुछ भी मान सकते हो। सपोज मैंने 50 मान लिया मिडिल वाला वैल्यू, तो मैंने लिख दिया x minus 50। तो अब क्या हो जाएगा? सारी वैल्यू को 50 से माइनस करोगे। 10 minus 50 minus 40 minus 20 0 20 डिटेल में पढ़ेंगे हम। I just want to discuss what is actually b, और इसमें करते क्या है, इस b के बाद हम f into d निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? a plus summation fd upon summation f. Just compare it. x के प्लेस पे क्या आ गया, यहाँ पे देखो b आ गया है, तो क्या आपने x को चेंज कर दिया d में। सेकंड थिंग, a प्लस हो रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आपने ये माइनस भी तो करा है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, राइट? थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी कुछ वैरायटी होती है, बट दिस ईयर दिस मेथड हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, तो अभी हम इसे पढ़ने नहीं वाले हैं, है ना? जब हम नेक्स्ट ईयर का वीडियो बनाएंगे तब इसे इंक्लूड कर लेंगे। अभी ध्यान रखना 2021 के सिलेबस के लिए स्टेप डेविएशन मेथड को हटा दिया गया है। ओके, as we have discussed methods in grouped variety, one is shortcut method, one is direct method. The question is, sir, which method we should use? देखो, obviously shortcut method will be easy to use. Shortcut means not we cannot use in exam. This is one of the method, assume mean method. Now it depends on you. If nothing is given in the question, no name is given in the question, then on your wish, which method you want to apply. This question I have taken from the latest paper, standard paper 2020. Question was asked. Now I will be solving this question by both the method. Now you decide which method you find comfortable. In this question nothing is written by this method you need to solve. Let's start the question. We have number of wickets and number of bowlers, right? The class, जो भी class है आपका, उसको आप x से denote करेंगे। class you write first and number of bowlers को आप frequency लिखेंगे। So इसको x नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे? That we are going to discuss. What we do first, we'll first write the class and f. Here I have written the data that is there in class and f. F is what? The frequency. Now this is a continuous variety. In continuous class variety, we'll first write mid value.
मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका होता है. व्हाट यू डू, यू ऐड बोथ द वैल्यू 20 plus 60 and divide by 2. Add the value and divide by 2. 20 plus 60 80 होगा, 80 by 2 will be 40. So first का मिड वैल्यू 40 हो गया. Now second का मिड वैल्यू क्या होगा? 60 plus 100 160, 160 by 2 80. अब बात आती है सर एवरी टाइम वी नीड टू कैलकुलेट. नहीं यार, इंटरवल इज सेम ना, इंटरवल इज सेम है, सो गैप कितने का है? 40 का गैप है, तो आप 40 40 बढ़ाते जाओ. और इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल करो कैलकुलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाय एनी वे यू डू दिस. नाउ व्हाट इज द फार्मूला दैट वी आर यूजिंग इन डायरेक्ट मेथड? इज समेशन fx अपॉन समेशन f. f और x तो आ गया है आपके पास. नाउ व्हाट यू विल कैलकुलेट? यू विल कैलकुलेट f into x. इसका मतलब क्या है? f into x कैलकुलेट करो, देन दिस मींस समेशन ऐड करो, समेशन fx भी डी fx और उसका जो भी सम आएगा बेटा that will be summation fx. इस f है, इसमें summation f आएगा. now you just multiply f को x से multiply करो. 74 जा 80, then 58 जा 200, then 16 into 12 160, 32 192 1920, then 12 into 160, then again 1920, then 2 into 200 400, then 3 into 240, this is 720. Now I will add all these values and will write fx. I will add all the frequency and I will write summation f. By adding all these values, we are getting summation fx is 5640 and summation f we are getting 55. So now we'll put it in the formula 5640 upon 45. तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप. भाई कैंसिल करो. 5 9 जा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 8 जा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 1 4 5 2 जा 10 5 8 जा 40. now again you can calculate 3 3 जा 9 3 3 जा 9, then 3 2 2 3 7 जा 21, then 3 6 जा 18. now you just divide it, then you will get 125.33. So this will be the answer. Now obviously some calculation will be there. थोड़ा तो करना पड़ेगा. 4 marks का भी तो क्वेश्चन आता है आप लोगों को. Now we'll discuss the same question by shortcut method, assume mean method. Now you decide which is easier for you. Now same question we are solving by assume mean method. We'll first write the formula. Formula of assume mean method is a plus summation fd upon summation f. We also say shortcut method. अब इसमें अंतर क्या है? देखो f के साथ d है, तो d निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले. इस fx की जगह you what you do right, you just write d. तो d होता है बेटा x minus a. यहाँ पे a होता है assume mean. ये assume mean होता है. अब क्या मान ले assume mean? let a को आप मानते हैं x से. x में जितनी भी वैल्यूज है इसमें से किसी भी वैल्यू को आप a मान सकते हैं, बट जनरली हम मिडिल वैल्यू को लेते हैं. अब यहाँ पे देखो 6 वैल्यूज है, मिडिल में 120 भी है और 160 भी है. सो यू टेक एनी ऑफ these as the assume mean. So I am writing let a, मैं 120 को मान लेता हूँ. a मैंने किसको मान लिया? 120 को. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जरूरी नहीं है आप 130 को मानोगे तो also you will get the correct answer. बट हमें क्या मानना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें मिडिल वाली वैल्यू लेना है, राइट? आप यही लेके चले. So x the first value is 40. 40 minus this is x minus 120. 40 minus 120 is minus 80. 80 minus 120 minus 40. Then 0, 40, 80, 120. One more column, additional column will have here. तो हमें fd निकालना है. तो write f into d. Now f into d का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे. 87 जा 560, 40 45 जा 200, 16 0 0, 40 12 जा 480, then 400, then this is 82 जा 160, then 123 जा 360.
Now we'll add all these value. तो सिंपल सी बात देखो, ये 360, 560 माइनस 200 बचा, माइनस 200 माइनस 200 माइनस 400, और इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 6 640. सो ओवरऑल डिफरेंस आ जाएगा समेशन एफडी इज 240. आप कैलकुलेट करें, मैंने अपने तरीके से कैलकुलेट करा है, दैट यू विल गेट प्लस 240. नाउ अज्यूमिंग का फॉर्मूले में ए रखोगे आप, ए कितना है बेटा 120 प्लस समेशन एफडी कितना आ रहा है आपका 240 अपॉन समेशन एफ, तो वही है ना, समेशन एफ कितना है 45. सो फिर से कैलकुलेट करता हूं, 5 9 जा, देन 5 5 9 जा, देन 5 से मैं कर सकता हूं 5 4 जा 20, देन 5 8 जा 40. सो 48 by 9, 48 by 9 को क्या बोल सकता हूं 16 by 3, 16 by 3 is 5.33, so 125.33. So whether you apply any method you will get the same answer. अब क्वेश्चन ने बोला अज्यूमिंग से करना है, अब तो करना ही है ना, it's on your wish you want to apply it or not. Now next question is the question from NCERT. This question is obviously from NCERT, but variety you see, it is an inclusive type. इसमें एंड पे स्टार्ट नहीं हो रहा है. And I have told, अगर इस टाइप का क्लास है कि जिस पे एंड नहीं हो रहा है, उस पे जिस पे एंड हो रहा है उस पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, this is an inclusive variety. You will first make it exclusive, then you will solve it. Now how to make it exclusive? मैंने बताया था गैप कितना है, आप देखो गैप 1 का है, 1 का जितना भी गैप है 2 से डिवाइड करो, 1 by 2 0.5, इस 0.5 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट होगा और अपर लिमिट में ऐड होगा. तो we have the data will be class is 49.5 say 52.5, then 52.5 to 55.5, 55.5 to 58.5, 58.5 to 61.5, and 61.5 to 64.5. इसके बाद विल राइट मिडिल वैल्यू, हमें मिडिल वैल्यू चाहिए होता है ना. अब मेथड कौन सा यूज करना है दैट डिपेंड्स, तो हम कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिडिल वैल्यू के लिए विल ऐड दीस टू वैल्यू एंड डिवाइड बाय 2. सो 49.5 और 52.5 को ऐड करो, यू विल गेट 102, देन 102 को 2 से डिवाइड करोगे 51. अब गैप कितने का है यहाँ पे, हियर गैप इज ऑफ 3, तो 3 3 प्लस करते जाओ, 54 57 60 63. नाउ दिस इज नंबर ऑफ बॉक्स इज f. डायरेक्ट मेथड लगाना है तो f into x करोगे, अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. आई एम यूजिंग हियर अज्यूमिंग मेथड, और अज्यूमिंग मेथड में आई विल कैलकुलेट d. d क्या हो जाएगा बेटा x minus a. अब a किसको मानना है, आई लेट a, बताओ a किसको लोगे, मिडिल वैल्यू. ध्यान रखना है x से लेना है, कई बार बच्चे गलती करते हैं f पे आ जाते हैं. तो x में मिडिल में 57 है, so let a is 57, x minus 57. क्या फायदा होगा अभी दिखेगा आपको. 51 minus 57 minus 6, 54 minus 57 minus 3 0 3 6. now you see आपको इसमें अज्यूमिंग मेथड में f into d करना पड़ता है, बिकॉज़ फॉर्मूला क्या होता है, we have फॉर्मूला मीन x बार अज्यूम मीन में क्या होता है बेटा a प्लस समेशन fd अपॉन समेशन f. सो f into d निकालना होता है, इसका समेशन fd होगा, तो समेशन f आप वहां पे कैलकुलेट करेंगे. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नाउ मल्टीप्लाइंग दिस एंड विल बी राइटिंग इट हियर. नाउ 15 6 क्या हो जाएगा बेटा, 15 6 90 minus 90. सो अगेन सेकंड 1103 minus 330, 135 0 0, 1153 355, and 15 6 150. Now if I add all the values, मैंने नेगेटिव वाले ऐड किया minus 420 आ रहा है, पॉजिटिव ऐड किया 495 I am getting here, and इन दोनों को करूंगा माइनस प्लस करके तो I will be getting 75. Here if I add all these value I will get 400. So I will put it in the formula. फॉर्मूले में तो बहुत छोटा सा हो जाता है. भाई ये क्या हो गया आपका 57 प्लस समेशन fd 75 अपॉन
400, तो 75 upon 400 कैलकुलेट कर लेते हैं हम, राइट। 25 3 जा 75, 25 से कितना जाएगा देखो, 25 1 जा 25, देन 15, 25 6 जा 150, so 57 plus 3 by 16, 3 by 16 we can say 0. 3 by 16, 0. 16 to the 16 on the 16, then 140, 16 से कितने बार देखते हैं, 16 9 जा 144, 8 जा, so 0.18 के क्रॉस आ रहा है, so we are getting 57.18 as the mean. अप्रॉक्स, बिकॉज ये पूरा एंड नहीं हो रहा है ना, पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो अप्रॉक्स लिख देंगे आप. So now this method is clear. In my video I have taken, means we can say I have solved 3 questions, one from shortcut, one from assuming method, and third question is of inclusive variety. Now by solving these 3 questions you will be able to solve any of the questions. Obviously some questions of unknown variety will be taken later on.